मुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बिबड़ी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय श्री श्री कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय ब्रजमी वृंदावन धाम की जय नवदीप मायपुर धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय समावित भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. So yesterday we understood about Lom and Pratilom Viva. According to Sukadeva Goswami, and the curse of counter cursing and cursing of Devyani to Kacha has been also there. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 18, text number 23. Yayatiranam abhipretam Yayatirna abhipretam Devo aprata atmanaha Devo aprata atmanaha Manastu tadgatam buddhva
Manastu tadgatam buddhva pratijagraha tadvachaha pratijagraha tadvachaha yayatirana apipretam Daivo apratamatmanaha Manastu tadgatam buddhva Pratijagraha tadvachaha Yayati King Yayati Anabhipretam not liked Daiva upahratam brought about by providential arrangement. Atmanaha, his personal interest. Manaha, mind. Tu, however. Tadgatam, being attracted to her. Buddhva, by such intelligence. Pratijagraha, accepted. Tadvachaha, the words of Devyani. Translation. Sukadeva Goswami continued, because such a marriage is not sanctioned by regular scriptures, King Yayati did not like it. But because it was arranged by providence, and because he was attracted by Devyani's beauty, he accepted her request. Srila Prabhupada is telling in the purport that according to the Vedic system, the parents would consider horoscope of the boy and girl who were to be married. If, according to astrological calculation, the boy and girl were compatible in every respect, the match was called Yotaka, and the marriage would be accepted. Even 50 years ago, this system was current in Hindu society. Regardless of affluence of the boy or personal beauty of the girl, without this astrological compatibility, the marriage would not take place. A person is born in one of the three categories known as Devagana, Manushya-gana and Rakshas-gana. In the human society, in the different parts of the universe, there are demigods and demons. In the human society also some people resemble demigods, whereas others resemble demons. If according to astrological calculations, there was conflict between a godly and a demoniac nature, the marriage would not take place. Similarly, there were calculations of pratiloma and anuloma. The central idea is that if the boy and girl were on an equal level, the marriage would be happy, whereas inequality would lead to unhappiness. Because care is no longer taken in marriage, we now find many divorces. Indeed, divorce has now become a common affair. Although formerly one's marriage would continue lifelong, and the affection between husband and wife was so great that the wife would voluntarily die when the husband died, or would remain a faithful widow throughout her life. Now, of course, this is no longer possible, for human society has fallen to the level of animal society. Marriage now takes place simply by agreement. Dampatye viruchir hetu. That is said in Bhagavatam, 12th canto, 2nd chapter, 3rd verse. The word abhiruchi means agreement. If the boy and girl simply agree to marry,
the marriage takes place. But when the Vedic system is not rigidly observed, the marriage frequently ends in divorce. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadam Vandeham Shri Guru Shri Chitrapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Tam Tam Sujivam Sadvaitam Savadutam Parijan Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Vishakhanitanscha. He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhya Vaishnavebhyo Namo Namah Namah Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So Sukadeva Goswami continued, because such a marriage is not sanctioned by regular scriptures, King Yayati did not like it, but because it was arranged by Providence, and because he was attracted by Devyani's beauty, he accepted her request. So, Vinashakale Viparita Buddhi. When the things are going to अपने जीवन में कुछ अनबनाव होता है, तब शादी टूटती रहती है, बर्बादी होती रहती है। लेकिन भगवान के साथ सीधी शादी करने से सारी दूसरी बर्बादी मिट जाती है ना? राधे हरि बोल। इधर ध्यान ज्यादा डर ओके तब यूनि में नहीं। So यह महाराज इसको संयोग द्वारा, यानी कि ऐसे योग जुड़ावा हुआ है, तो उसमें अपना कुछ चलता नहीं। सही लाख करे उपाय, जब शास्त्र की अवज्ञा है फिर भी संयोग ऐसा है, तो वो तो ये सत्ययुग में भी बनता था, तो कलयुग में इसकी मात्रा कितनी बढ़ गई होगी हैं? अच्छे गुणांक मिल रहे हैं, फिर भी अभी तो पलटी मारते हैं। एवा दिखाओ, अच्छे गुणांक मिलते हैं, फिर भी संभावना बनी नहीं रहती। हम ऐसे प्रसंग में पसार हो रहे हैं। भक्त किस्म में भी भक्ति में कभी अहंकार या अलग इच्छा या परिवार और आने वाली बहू हमारे में मिल जाएगी, हमारी तरह बन जाएगी। तो यदि कोई पढ़ी लिखी बहू आए और भक्ति में आगे हो, तो उसका क्या क्या हाल होता। तो ये कलयुग है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे समाज में और भक्त के समाज में भी पैदा होते हैं।
लेकिन जिसका मन भगवान के प्रति स्थिर नहीं है और प्राधान्यता परिवार और समाज और अपने नेचर के साथ आएगी, तो शादी तो एक के साथ होती है, एक के गुणांक मिलाते, तो घर के परिवार वालों के सारे गुणांक मिलाने चाहिए। घर में तो बहुत सारे सदस्य हैं। ये प्रदेश में से कि इंडिया में जो शादी होती है ना, तो एक व्यक्ति के साथ नहीं होती, सारे घर के साथ शादी होती है। ये ऐसा समाज बन गया है, एक के साथ शादी नहीं होती, सारे घर के सदस्यों के साथ शादी होती है। यानी कि सब का वो बहू को निभाना पड़ता है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। गुणांक एक के मिलाते हैं। हाँ, तो शादी नहीं टकने का कारण बहुत बनता है। पढ़ी लिखी बहू आई और वो भी भक्ति में पढ़ी लिखी जब बहू आती है तो उसके आवकार के लिए भक्ति प्राधान्य नहीं होगी, हमारा परिवार, हम प्रधान होंगे। ये विनम्रता जब नहीं है तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो संयोग तो बहुत सारे पैदा हो सकते हैं, आज नहीं तो कल। हाँ? तो भक्तों के लिए ये आवश्यक है कि तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानि न मानदे न कीर्तनीय सदा हरि। भक्ति ही जीवन में प्राधान्य है, तो ऐसे शादी द्वारा ये खंडित नहीं हो जाना चाहिए। भक्ति यदि प्राधान्य है, भक्ति का जीवन है, तो दूसरी चीज का महत्व नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत बाधा पैदा करेगा। एक के साथ जिसके साथ शादी हो रही है उसके गुणांक अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन सारे परिवार के साथ शादी के लिए गुणांक कोई मिलाता नहीं। हाँ? वो कहते कि अपने आप में ही एडजस्ट हो जाना पड़ेगा। हाँ? यानी कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, वो जो बाहर वाली जो आ रही है उसकी जिम्मेदारी है। तो ये परेशानी भक्ति में कितना महत्व रखती है, उसको कैसे मिटाएंगे? यदि संयोग अच्छे हैं पति के साथ, देवगण के होते हैं, तभी तो गुणांक मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ये कलयुग में किसी का ऐसा महत्व नहीं रहता। शादी करने वाले को ये ध्यान में रखना चाहिए। और यदि वो भक्त समाज, नहीं तो हमारे भक्त समाज में जितने शादियां टूटी है उतने बाहर नहीं टूटी है। इसका मतलब भक्ति में भक्ति कच्ची है। इसका मतलब भक्ति कच्ची है। आप लाख करो उपाय, अच्छे गुणांक हैं, 100% हैं। हाँ, हमारे कई भक्त शादी करते हैं 100% गुणांक में भी वो लोग सारे परिवार के साथ अच्छे रहे। क्योंकि इतना दिल विशाल होना चाहिए कि कहीं भी जाते हैं तो हम एडजस्ट हो पाएंगे, और सबके साथ सारा परिवार अपना लेना आवश्यक भी होता है। सारा परिवार अपना लेना आवश्यक होता है। वो तो स्वभाव के अनुसार रहेगा। यदि किसी को अपने पढ़े लिखे का भी तो अहंकार होता है, हाँ, तब वो भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। हाँ, सबके सामने जो
शील यानी कि चरित्र में सहनशीलता और बड़ों का सम्मान करना इत्यादि की सारी भावना होती है, हाँ, तो पढ़ा लिखा भी काम में नहीं आएगा, चरित्र ही काम में आएगा। हाँ, तो व्यक्ति को दोनों तरफ से देखना होता है। हाँ, पढ़े लिखे हैं तो क्या है, अभिमान तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अवश्य तालमेल बन सकता है, तो लेकिन ये तो एक दूसरे को संभालने की बात होती है और आवश्यक है तो अपने ही आध्यात्मिक परिवार में ऐसी समस्या होती हैं तो ये मीडिएशन यानी कि मध्यस्थी में दोनों पार्टी को समझाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सिद्धांत तो यह है कि दोनों को तृणादपि सुनिचेन अपने अपने हिस्से में रहना ही पड़ेगा। और एक दूसरे की यदि थोड़ी सी भी कमी है तो पूरी करने का दूसरों पर जिम्मेदारी भी बन जाती है। यदि किसी में कचास है तो अच्छी तरह से समझाने से ये कचास दूर हो सकती है, क्योंकि भक्ति में बाधा ना हो। हर एक भक्त के असली शादी तो भगवान से ही होती है। तो भगवान के अनुरूप पति को विष्णु तरफ माना जाता है और पत्नी को लक्ष्मी की तरफ माना जाता है। तो जब पुरुष शादी करने आता है तो उसकी पूजा उसकी सास विष्णु के रूप में करती है, और उसी तरह लड़की जब आती है तो उसकी पूजा लक्ष्मी की तरह करते हैं। अब फिर भी झगड़े का कारण ये जो इम्बैलेंस, गुणों का इम्बैलेंस, वो मुख्य भाग बचता है। और ना समझ भक्ति के बारे में, कच्ची भक्ति के बारे में होता है, ना समझ होता है। तो चाहे बच्चे पैदा हो फिर भी शादी टूटती है, एक कलयुग है। बच्चे का भविष्य भी ठीक नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये दो चीज आपस में योग जब जुड़ा हुआ होता है तो पूर्ण योग कहाँ है वो देखना चाहिए। परिवार अछूत नहीं रह सकता। लड़की के लिए जो घर में जा रही है तो वहाँ उसकी समझ, स्थिरता इत्यादि कितनी, बाद में वो फरियाद नहीं कर सकती, क्योंकि आश्रय स्थान गंवा नहीं सकती। आश्रित है, लड़की आश्रित होती है, तो आश्रयदाता का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। हम ये भगवान आश्रयदाता है, हम भगवान के आश्रय पर हैं, तो हम लड़की को वे भगवान के आश्रय पर ही स्वीकारेंगे। हम ऊंचे कुल के हैं, नीचे कुल के हैं, ये ऊंच नीच का यहाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये आदर्श गृहस्थाश्रम में दिखाया जाता है कि जब हम सेमिनार देते हैं उसमें दोनों के वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो क्या उसकी पूर्ति हो सकती है, उसका सुझाव परदेश में भी होता है। एक दूसरे की कमियां कैसे पूरित होती हैं, उसके लिए सुझाव। शादी करने वाले को ये ध्यान में रखना चाहिए।
कौन सी डेफिशिएंसी दिखाई देती तो उसका क्या पूरक हो सकता है। सही। तो जब इस इतनी समझ जिस परिवार में नहीं होती तो वहां काफी मुश्किलियां खड़ी हो जाएगी। किसी भी बाबत में ऐसे विचार वैमनस्य यानी कि विरोधी विचार जब खड़े होते हैं तो मध्यस्थी की आवश्यकता होती है। अपने आप यूनिलेटरल कोई भी डिसीजन नहीं ले, नहीं तो काफी अनर्थ होता है, क्योंकि हम भक्ति के मार्ग और भक्त का जो चरित्र है वो कम करेंगे, उसका महत्व नहीं देंगे। ऐसी आसक्ति में भी बहुत काफी गड़बड़ी होती है। सिर्फ शादी का प्रश्न नहीं, योग का प्रश्न है। भक्त योगी कहलाता है, तो भगवान के साथ जुड़ावा होने के कारण दूसरों के साथ जुड़ावा हो सकता है, क्योंकि भगवान मध्यस्थी करेंगे, गुरु मध्यस्थी करेंगे। हर एक आदर्श गृहस्थाश्रम में गुरु की आवश्यकता सर्वप्रथम बताई है कि भगवान के आदेश का पालन करना है, इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। तो उसके निर्देश में हम कैसे करते जाएं। शास्त्र में तो सब कुछ बताया, तो अपने आप शास्त्र में अपने जीवन में उसका हम अनुसरण नहीं कर पाते। मध्यस्थी होनी चाहिए गुरु की। आप देखो 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में सर्वप्रथम आदर्श गृहस्थाश्रम में वो पहले भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने सारी रचना की है और जिस हेतु के लिए की है वो हेतु भगवान के तरफदारी वाला है। तो मनुष्य जन्म में उसका जो विकास होता है वो चरित्र और संस्कृति से होता है। संस्कृति में सारी कृति कर्तव्य जो भगवान के अनुरूप है, अनुकूल है, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। अनुशीलन करना संस्कृति का मुख्य सिद्धांत है। जब हम अनुसरण नहीं करते और मिथ्या किसी और संस्कृति का अनुकरण करने लगते हैं तो गए काम से। तो भारत देश में अपनी वैदिक संस्कृति का इसी तरह ह्रास हुआ है, पतन नहीं, ह्रास यानी इसमें प्रदूषण पैदा हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये बेवकूफी, ये सारी बेवकूफी है। दिल है हिंदुस्तानी यानी कि मैं जैसा हूं वैसा बाहर से दिखा तो अंदर से तो मैं हिंदू ही हूं ना, हिंदुस्तानी हूं ना। लेकिन जीवन का उद्देश्य भूल गया, उसका क्या है? दूसरों का अनुकरण कर रहा है। उसके पीछे सारी भावना। प्रभुपाद जब अमेरिका आए तो उन्होंने सबको धोती पहनानी चालू करवा दी। तिलक, मुंडन। बेचारों के पास कपड़े नहीं थे तो दुकानों से बड़े बड़े बोल्ट ले आते थे सफेद कपड़े के और लपेटते थे चादर की तरह। अच्छी तरह से बाल भी मुड़ा नहीं पाते, इतना बड़ा पीछे बाहर रहता है, चोटी रखी। कोई तो इतना लंबा बाल औरतों की तरह उसका गुंथन करते थे। अभी भी करते हैं। ये परदेसी मिथ्या अनुकरण। उससे
इतनी लंबी चोटी रखकर कोई ब्राह्मण बन सकता है? हाँ। तो कहने का मतलब है कि ये सारा जब प्रभुपाद जी ने दाखिल किया तो उन्होंने लिखा है कि यदि वहाँ के लोग जान गए कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मुझे मार डालेंगे। इनके समाज में सारा विपरीत। पहले तो जो क्रिश्चियन लोग हैं कहते हैं बाइबल में लिखा है 10 कमांडमेंट में कि thou shall not worship a graven image। ग्रेवन इमेज है ना, भौतिक तत्वों से बनी हुई कोई भी, यानी कि मूर्ति पूजक। तो हम लोग तो मूर्ति पूजक नहीं है, हम विग्रह सेवक हैं। उनको ये पता नहीं, पर फिर भी जब जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव इत्यादि उनकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई, प्रभुपाद जी ने इनकी बड़ी रथ यात्रा का आयोजन कर दिया। भगवान आए तो वो कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, ये यदि वो इसका हेतु जान गए तो मुझे मार डालेंगे। पर फिर भी भगवान की इच्छा सर्वोपरि होती है। लेकिन उन्होंने ये शंका बताई थी कि संस्कृति दाखिल करना सैद्धांतिक दृष्टि से तो कोई अपवाद नहीं। और अमेरिका जैसा देश जहां सारे विश्व की सारी संस्कृतियां वो कहलाने वाली संस्कृतियां, जो आधुनिक है, पश्चात है, वैदिक संस्कृति के बाद पैदा हुई वाली सारी संस्कृतियां वहां होती है। और ये संस्कृति में धर्म का प्राधान्य, लेकिन हर एक धर्म में काला जादू करने वाले भी, हर एक धर्म। एक क्रिश्चियन लोग भी एक्सोर्सिज्म करते हैं, एक्सोर्सिज्म प्रीस्ट लोग का करते हैं। मुसलमान भी तो करते हैं, और जब हिंदू करते हैं तो उस पर चढ़ बैठते हैं। काला जादू, लेकिन ये तामसिक प्रवृत्ति है। इसके लिए भक्ति में तो अनुमोदन आता ही नहीं, वो भक्ति का कोई अंग कहलाता नहीं। तो जब श्री प्रभुपाद जी ने सारी स्पष्टता की, भक्तों ने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वैसे भी चर्च में जीसस क्राइस्ट का क्रॉस लेकर उनको पूजा करते हैं। तो पूजा, प्रभुपाद जी के दे विल नेवर ब्रिंग जीसस क्राइस्ट डाउन, दे वांट टू कीप हिम अप ऑन द क्रॉस ऑल द टाइम। जीसस की मां ने, मेरी ने उतरवाया था और गुफा में रखा था। उस समय मरा नहीं था। कहते कि मैं 3 दिन के बाद खड़ा हो जाऊंगा, आप आओ, बाद में यहां से मैं भाग निकलूंगा जीव बचाने के लिए। तब कहते हैं कि वो हिमालय पास करके जम्मू, कश्मीर और बनारस इत्यादि, वो एक्वेरियन बाइबल में आता है। बहुत सारा। और जगन्नाथपुरी में रिकॉर्ड है, काशी विश्वनाथ में रिकॉर्ड है। वहाँ के ब्राह्मण ने उसे परदेसी जानकर उनको वहाँ से भगा, तो तब वो जम्मू में आया था। जम्मू में उसकी कब्र है, उसको दफनाया गया था। सारा इतिहास है वो एक्वेरियन बाइबल वालों ने लिखा है, नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें जिस पर प्रश्न उठ सकते हैं,
लेकिन लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार धर्म को बढ़ावा देते हैं, धर्मांधता कहते हैं। दूसरों को कन्वर्ट करना, जबरदस्ती से कन्वर्ट करना, लोभ देकर कन्वर्ट करना। तो जब इंडिया में भारत में अपने जब भक्ति की ये विरासत में जब हानि आई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब भगवान का शक्ति का आवेश प्रभुपाद में आया और उन्होंने स्थापित किया कि सब जगह ऐसे दूषण पड़े हैं। वैमनस्य का दुश्मन, ये दुश्मनी भारी, एक घर से लेकर सारे समाज तक फैल सकती। राजा जानते हुए कि भैया ये शास्त्र में मान्यता नहीं, फिर भी दूसरा कारण द्वारा उसने मन मनाने की कोशिश की, लेकिन फंसा, योग के अनुसार फंसा, वहां गया है। लेकिन ये कहानी इतनी आवश्यक है कि ये सब कोई इरोटिक स्थिति नहीं है, कामोत्तेजक नहीं है, लेकिन इसके पीछे वैदिक शास्त्र क्या कहता है उसका। नहीं तो कौन ये जब ययाति बूढ़ा हो जाएगा और शाप का निवारण करने के लिए कहेगा कि चल तेरे बेटे के जवानी से तू अदला बदली कर, ये कौन सा नियम है? कच्छ और देवयानी के बीच में श्राप एक दूसरे को दिया। तो जब धर्मस्य ग्लानि आती है तब अभ्युत्थानम, ये भगवान ने बनाया है अभ्युत्थानम। तब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी की दिव्यता, यदि उसके अनुसार हम नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ भी लोचा पड़ेगा, लोचा। मैंने कहा राधे तभी नहीं मत जा, यहाँ पड़ी रहे। तो तेरा जीवन का तो उद्धार कर, दूसरों का नहीं कर पाएगी तो। या राधा श्याम, राधा रानी की जय। तो कहने का मतलब है कि हमें ये सारी चीजें देखनी होती है। पूर्णता का परिचय तब होता है, नहीं तो हम ये तो कहानी की तरह दरगुजर करते रहेंगे। जस्ट गेट एन एक्सक्यूज, गेट एन एक्सक्यूज, कम बाद में झगड़े का कारण बना, वो ठीक नहीं। ये सब प्रतिलोम विवाह, और प्रतिलोम में भी कितनी गर्ता में कैटेगरी, सब जगह कॉम्प्रोमाइज, सारे चरित्रों का कॉम्प्रोमाइज। अभी तो टेवा भी देखने वाले नहीं हैं। और ये कृष्ण भावना में कहते हैं अरे हम तो कृष्ण भक्ति में आ गए, अभी टेवा देखने की क्या आवश्यकता है, कहते हैं। और टूटने वाली तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक वाली तो इस्कॉन ही है। ऑलराइट, नहीं, सावधान, हरे कृष्ण, सावधानी बरती तो दुर्घटना नहीं घटती। कृष्ण भावना बहुत प्रबल है, वही उद्देश्य है। अभी तो क्या है कि कलयुग में तो किसी का भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं कि उम्र चली जाएगी, लेकिन लड़कियां भी इतनी पढ़ाई करती हैं कि
हेतु चला जाता है बाद में शादी के लिए। कॉम्प्रोमाइज कैसे? तो पैसे कमाओ, लड़ो। लड़कियां ज्यादा कमाती हैं, लड़कियां ज्यादा कमाती हैं लेकिन लड़ाई करती हैं। कलयुग की विचित्रता में आप देखोगे तो जो यदि मेरा कंप्यूटर ले आना जाके। Now I want to show you something very important that they do not consider. But psychology and जो गृहस्थों के प्रश्नों का जो निवारण है वो कैसे निपटा जाता है, उसके लिए हमें वो गुण विकसाने चाहिए। तो उसकी हम चर्चा करेंगे। नहीं तो कलयुग में तो प्रतिलोम ही विवाह होते हैं। सही ना? प्रतिलोम ना दूसरा कौन सा? अनुलोम। अनुलोम और प्रतिलोम। प्रतिलोम फेवरेबल होता है नहीं, और अनुलोम फेवरेबल होता है, क्योंकि दोनों के चरित्र अच्छे। पर लेकिन ये तो दोनों, हम तो परिवार की बात कर रहे हैं सारे, क्योंकि समाज ऐसा विस्तृत है कि लड़की घर आई तो सारे परिवार को शादी करके आती है, एक नहीं है नहीं। ठीक है।